how do you want to connect on Ramzan from tomorrow? So what do you think? How do you want to connect it? Can you hear me, guys? Hey, everyone. Ashfaq, Imran, Ansar, Sharif. Keep it same time, sir. Yes. Do it at the same time? Yeah, keep it same time. Okay. Usually people sleep after the prayer, after the Fajr. So what do you think? 7 से 7 से रखना ना सर 7 से ओके फजर कब हम्म की है फजर रहेगी 6 बजे तक हो जाता है 5:30 6 बजे तक सब कंप्लीट पढ़ाई वगैरह अभी तो क्या 5 बजे आपका खत्मे सहरी का वक्त है हम्म, ठीक है 6:30 will sunrise ठीक है कल एक काम करते हैं कल यही टाइम पर ही ज्वाइन करके देखते हैं जमता है तो ठीक नहीं तो फिर रीशेड्यूल कर देंगे जी ज्वाइन नहीं हो रहा है ट्राई फ्रॉम ब्राउजर सर पिछले सैटरडे और संडे की रिकॉर्डिंग नहीं है क्या इसमें आपने वो राइकल वर्चुअल के लिए भी बताया था उसमें अच्छे से है दिया था ना रिकॉर्डिंग नहीं मिली नहीं वो आपने एक लिंक डाला था उसमें साइन करने के लिए बोला था लेकिन वो उसमें नहीं है यूट्यूब वाले पे अच्छा ठीक है जी alright I'll check it out okay alright so today we are starting from Azure today we are starting Azure and first thing first in Azure let's understand the cloud. So, how much you are good in the cloud? How much you understand the cloud? What is cloud? Why we use a cloud? कोई आंसर नहीं मिला anything not सर हम लोग जो डाटा सेव करते हैं ऑनलाइन उसको क्लाउड बोलते हैं अच्छा so okay let's start with this four question why cloud what is cloud and why Azure what is it this is does this question we have done for everyone ये किया है आप लोग के लिए मैंने guys answer शायद नहीं हुआ है सर ये okay so why cloud मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पूछूंगा why cloud क्यों सीखना है तुमको cloud क्लाउड ही क्यों सीखना है कुछ और दूसरी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सीख रहे हो why cloud why you learning a cloud बेस्ट फील्ड है सर आईटी से रिलेटेड ही है सेपरेटली छोटा सा कुछ ज्यादा मतलब टाइम ज्यादा टाइम वाला कोर्स नहीं है okay जी any anyone else anyone else have a different answer The cloud is actually on-demand availability, sir, of computer system resources.
Okay. because uh, it's an advanced technology and it's a secure also. Mm-hmm. Hello, sir. Mm-hmm. Especially the data storage and for the like uh, data storage and actually power power for the bare metals, everything for the infrastructure bill, So तुम्हारे लिए light क्या? bill and any disaster For what? What's it for you? for the in in-house in-house like servers everything. So it will cost that much. So we are many infrastructure is many companies are going for the cloud, and small Hmm. company also be moving for the cloud only Okay. Okay. on Got you. premises. All right. Perfect. All right. Basically, I'll not take much time. I'll say that, hey, there is a revenue, there's a business. So there's a trend we have, company people have observed that, hey, this is also having some business. In 2017, it was $145 business, which got increased to 2018, $174 business, and 2019, it was $206 business. So this is an old report which I have found and collected here. So if you see that it's gradually increasing and with a huge size of a business in the IT industry. So any new technology, people are preferred to go on cloud. People are preferring to go on cloud, right? People are feeling that, hey, why should invest a huge amount in data center? Why should I maintain the data center? Let's me go on a cloud. So they are now their first preference is a cloud. So if the first preference is a cloud, so there is a revenue, there is a money flowing, so which means that you will get a good job. There's a lot of job opportunity. Alright? It doesn't make this cloud as easy or difficult, right? It doesn't matter, right? But simply thing is that there is a lot of money on here, so you will get a lot of good salary and you will get a lot of job. What is cloud? Some of you already have answered that, hey, what is cloud? Some say that it can store a remote data. Some say that it have cheap servers. Some say that you said that, hey, this could be possible on-demand access, right? So what is exactly definition of a cloud? So a definition of a cloud is cloud computing is a model. Cloud computing is a model of enabling universal, right? Where is that? Yeah, yeah. Enabling universal, convenient, on-demand network access to shared pool configurable computing resources, which can rapidly provision and release with with minimal manual effort or without interacting service provider, right? So this is a definition of a cloud. On here we have couple of things need to note it down. This is say that enabling universal, convenient, on demand, shared pool, shared pool, rapidly provision and release, and without interacting service provider. Right, this is a definition provided by NIST, National Institute of Standard Technology, NIST, right? This is the definition provided by NIST. And out of that definition, we got a five essentials characters, right? What are the five essentials characters we got from the definition? We'll see later on. So anyone who qualified the five essentials character, they can call themselves as a cloud provider, right? And when you are someone is qualified as a cloud provider, it can be served in three ways. Serve, how you can going to use it. So this is called cloud service module. So there is a three service module. Then there is a cloud deployment module, how to deploy the cloud.
So there is a three types of deployment module. What are those things? So five essential characters are on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, and measured service, right? And how you can get serve your cloud? So there is a three ways to get serve the cloud. One is that infrastructure service, another is platform service, third is software as a service. How you deploy? So you can deploy it in as a private cloud, public cloud, and hybrid cloud. All right, let's see things in details. What is mean by on-demand self-service? If I say in simple, right? Here we have a service. आपको computer चाहिए. So if you want to have a computer, you can have a computer. If you don't want to it, you just delete it, right? आपको कोई हार्डवेयर खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी और जब चाहे जब मिल जा रहा है. So that is called on-demand self-service, right? You are not going to say the Microsoft, hey Microsoft, we want to have two core server, we wanted to have four core server. We just go and say that, hey, we just go on portal and deploy the resources, right? Without interacting service provider. You're not interacting with Microsoft, right? You just go and deploy your virtual machine. If you don't want virtual machine, you just delete the virtual machine, right? So that is called on-demand self-service. So you're deploying resources without interacting cloud provider. Another thing is that called a broad network access. It could be accessed from anywhere, any location, right? So you are sitting in India, you can access US data center, US Azure data center. You are sitting in India, you can access the Dubai or Qatar Azure data center. You are sitting in let's say that you are sitting in Dubai, you can access India data center, right? So from sitting anywhere, you can access anywhere data. Also, it could be accessible from the many devices. Let's say that it could be accessible from the mobile, it can be accessible from the laptop, it can be accessible from the servers, it can be accessible from the Linux, it can be accessible from the Windows, it can be accessible from Macintosh. So it's complete cross connectivity of various options are there to connecting the resources. So that's called broad network access. Third thing is that resource pooling. So Microsoft have deployed a huge resource. There's a big data centers in Microsoft data of there's a big servers, number of servers, and a huge big data centers deployed by the Microsoft, right? And they have huge investment on Microsoft, right? Microsoft had done a huge investment. Now, if you want to create environment, you want to create your resources, what you will do that you will simply pull out the resources. Let's say that I want to compute, I want a database, I want networking, I want firewall. Those things you just pull out and build your resource environment, right? And you are not only one who's doing that. There are multi people doing this. So this is called multi-tenant module. So this will be multiple consumers. There will be several consumers, right? Using multiple multi-tenant modules. So you are not only customer, there will be a lot of customer in same data center, same hardware, right? Any questions so far? Okay, no questions. Right. Another thing is that rapid elasticity. So if you guys know that from the old days in a data center, if you have a two-core virtual machine, right, and you want to increase to 16 core, there's a lot of things you need to consider. You need to go for the procurement team, you need to go for budgeting team, procurement team, then you need to go float the code in you need to float the code
across the various vendor will bid on that, who will going to provide a cheapest, right? Then you select that, then a vendor deliver the hardware get delivered, then you install the hardware, you install operating system, you install cable connectivity, then you install application, then application testing will be done. So this takes 6 months approximately if you want to change from 2 core to 6 core, right? But whereas in cloud, you can get it done within a 5 minutes. Within 5 minutes, you are from 2 core to 16 core, 8 core, 6 cores, and once your work done, you will end up by come back to your 2 core. Whereas in on-premises data center, you have purchased that server, you have to use it, whether it is getting you 100% utilized or not utilized. All right. Any questions here? So here from 2 core to 16 core, it will take 5 minutes in cloud, right? 5 minutes in the cloud. But if the same action you want to do it on premises, it takes approximately 3 months, right? And when you work done, you come back to your original size, which is a 2 core. That's take another 5 minutes. But in the cloud, it will be underutilized the resources. We are not utilizing at all. So it's really difficult to find out the costing also, very difficult all for find out the budgeting, and also you will have a lot of underutilized resources which you miss to utilize it, right? In a cloud, each and everything will be measured. So if how many active users using right now, how many storage account you're using, how many compute power you're using, everything will be get measured, right? So let's say that in the previous example, we are running compute for longer period, only 2 core. But just for the 1 month or just for the 1 year, we are running this hardware. Let's say this is just for running 1 month, right? So the rest of the time I'm paying the 2 core. Only this month I'm paying the 6 core cost. Rest of the time I'm paying for the 2 core. So each and everything will be get measured in Azure, right? Whether it's active user, whether it is a passive user, whether it's compute power, whether it's CPU and RAM, right? हर चीज मेजर होती है उसका बिल होता है आपको, right? Whereas in on old days in on-premises data center you will have a blanket charges. Blanket charges बोले तो आपको already बोलेंगे अच्छा ठीक है आपको ये सर्वर चाहिए था, let me put a charges over there. So आप यूज करो या मत करो आपको charges लगने वाले हैं. That's called a blanket charges, right? So you whether you're going to use internet or not, you will get charged for internet. So that is pre what we can say that this is called a blanket charges, and whereas in a cloud it's purely consumption based. What you consume, you pay for it. If you don't consume it, shut down the virtual machine, you don't pay for it. Any questions in these five essentials characters? Guys, सुबह सुबह मुझे अकेले बात करना अच्छा नहीं लगता है. Please acknowledge. Any ये सब questions? डेफिनेशंस है ना सर? Definition नहीं है, characters है. Five essentials characters. Definition is this one is a definition. This is a definition. From this definition, we ओके. find out that there's a five essential characters. Right? This is five essentials. This is a definition, and those are the essential characters. Right? So anyone who will ओके. fulfill who will fulfill this cloud character will consider as a cloud provider. Right? Any questions here?
सर ये लास्ट 5 Sorry, Sharif. No, not the Sharif. What is Ijaz? Yes, Ijaz. ये लास्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ये। ये विल सी दैट। अभी हम सिर्फ इस पे बात करें जो मैंने अभी बताया आप लोग को। इस पे कोई डाउट है क्या? ठीक है। नो सर। ओके, परफेक्ट। ऑलराइट। सो गाइस टेल मी रिकॉर्डिंग दैट। चालू है क्या सर? हाँ यार, रिकॉर्डिंग चालू है। तुम फोकस अभी भी करो यार। खाली रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते हुए रहते हो। रिकॉर्डिंग चालू है भाई। अभी जो इम्पोर्टेंट, गाइस अंडरस्टैंड दैट recording, nobody watched the recording. Believe me, nobody watched the recording. दो दो चार चार घंटे की रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता है. What we are doing right now, try to understand here itself. Right? Seriously, if you rely on recording now, then what will happen that you will not focus on the here classes, and you think that hey, I'll go and watch recording, and nobody go back and watch the recording. 2 घंटा लगातार कोई टाइम नहीं लगाता है. सो आपको जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, यही पूछ लो. दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग इंटरैक्टिव क्लासेस, राइट? सो बिलीव मी, मेरी बात मानो. आपको जो डाउट है यहाँ पूछो. आपको रिकॉर्डिंग का वेट मत करो कि भाई हाँ रिकॉर्डिंग के अंदर मैं देख लूंगा, वो कर लूंगा. रिकॉर्डिंग में आप यहाँ एक बार समझो, रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. राइट? तो यहाँ समझो, जो डाउट है 10 बार पूछो, मैं क्लियर करने तैयार हूँ. राइट? So those are the five essential characters of cloud. Now let's say that we want to see that what is a service model. What is service? Anything gets served is called a service, right? So we understand, hey, this is a cloud. ये cloud है, right? ये cloud है. और cloud होने बाद अब उसको मेरे को use करना है, उसको किसी को serve करना है. How do you going to serve it? There is a three ways to serve it. We'll see later on. All right. But before seeing that three ways, let's host a website in your office. So let's see that let's say that you want to host a website in your office. आपको एक website host करना है आपके office के अंदर, right? So what are the things you need to consider? क्या क्या चीज़ consider करोगे आपकी office में ही? आपको वेबसाइट होस्ट करना है तो क्या क्या चीज़ कंसिडर करोगे? क्या क्या चीज़ कंसिडर करोगे? क्या क्या चीज़ चाहिए आपको? सबसे पहले एक कंप्यूटर लगेगा सर। ओके, वी रिक्वायर्ड उसके कंप्यूटर. बाद उसको यस एंड उसको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा। यस, वी रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शंस. और क्या लगेगा? सोचो, हर छोटी छोटी चीज़ सोचो क्या क्या लगेंगी. शरीफ तुम म्यूट हो गया गलती से. राउटर, आईपी राउटर. हम्म. आईपी एड्रेस, हम्म. सर Azure भी प्राइवेट और लगेगा। पब्लिक दोनों लगेगी। हम्म. यस, हु एल्स? सर Azure भी लगेगी। आश्योर की बात नहीं कर रहे अभी, हमको अपने ऑफिस में एक वेबसाइट होस्ट करना है. तो क्या क्या लगेगा? आश्योर तो अभी दूर है. सर प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा उसमें। तो वेबसाइट्स का डेटा लगेगा. DNS, private DNS. प्राइवेट डीएनएस, पब्लिक डीएनएस. ओके, ऑलराइट. फर्स्ट सोचो, सबसे स्क्रैच से सोचो. यू रिक्वायर्ड फिजिकल स्पेस. कहाँ सर्वर रखना है उसका कॉस्ट लगेगा, राइट? इफ यू आर योर सर्वर्स इन मेट्रो सिटी, you are paying a huge amount, right, in your office for the your offices. And if you put a server, so you are utilizing cost over there,
Right? There's a huge cost you're paying for on the space. Then you required power supply. You required cooling system. You required switches. You required virtual LAN. You required firewall. You required storage. You required servers, right? Right, Sharif? You required servers. You required hypervisor. What is a hypervisor, Yes. guys? To run your virtual machines, right? You required operating system. You required application. Like what do you want to do? You want to host a website, so you will install IIS Apache, right? Those are the application you require to host a website. And you required your application data, you required database, you required IP address, private IP, public IP, you required FTP server, you required DNS, public DNS, private DNS, you required host name, you required internet connectivity, right? So many things you require to host a single website in your office. So And subscription with the GoDaddy or purchase. yes, host name, right? More or less, I have mentioned here some things might be missing out, like firewall might be so those things are missing out, might be already mentioned. It doesn't matter. But the thing is that if you just want to host a single website, you need to consider so many things. And who manage that? Who manage those things? Who manages? You manages in your data center. Who you manages in your office, right? So if you go on a cloud module, serving module, if you look compare with on-premises, who manages all the details from the networking, storage, server, virtualization, operating system, runtime? You manages. कौन मैनेज करता है? आप मैनेज करते हो. आप मतलब आपकी कंपनी, आप लोग एम्प्लॉय कर आप लोग मैनेज करते हो, राइट? हर छोटी छोटी चीज, केबल कनेक्शन से लेके सर्वर के डेटा लिखने तक, उसको पब्लिकली होस्ट करने तक, हर छोटी छोटी चीज आपको मैनेज करना पड़ती है. Right. So, but if you go on cloud module, there is a first module is called infrastructure as a service. What is mean by infrastructure? Infrastructure मतलब हर वो चीज जो आपकी वेबसाइट को रन करने में मदद करे, फिजिकल चीजें, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? हमने बात कर चुके थे ये. कैन यू रिकॉल इट गाइस? व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? मैंने आपको बताया था एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आपको किसी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो क्या बोलते हैं, आप क्या देखते हो? रोड, या फिर आपके उसके ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रांसपोर्ट मोड, वो सब देखते हो. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको मूव करने में हेल्प करती है. दैट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? सो सेम वे द डेटा मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, one place one side to another side, that is required to be considered as an infrastructure. So हर वो infrastructure वाली चीजें, हार्डवेयर वाली चीजें we manage. Now it will get managed through the vendor. Vendor means AWS, Google, or Microsoft Azure, right? So those guys will going to manage your data center. They will manage the networking, they will manage the server, they will manage the storage, they will manage the virtualization technology. And you will get a virtual machine on Azure. You will get a virtual machine on Azure. So you have to manage partially, and they will manage partially. That is module is called infrastructure as a service, right? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मॉड्यूल में हम सारी हार्डवेयर वाली आइटम्स, वर्चुअल मशीन बोलो, फिजिकल मशीन बोलो, इंटरनेट कनेक्टिविटी बोलो, जगह का स्पेस बोलो, कूलिंग सिस्टम बोलो, हर वो चीज़ जो फिजिकली है, वो सब कौन मैनेज करता है? Azure मैनेज करेगा. ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल गेट अ वर्चुअल मशीन. उसके ऊपर आपको एक वर्चुअल मशीन मिलती है. वर्चुअल मशीन के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसको पैचिंग क्वार्टरली करना है कि कब करना है, ये सब आपका डिसीजन है, आप मैनेज करोगे, राइट?
इसके अंदर जो आप डेटा डालोगे, आपकी आपकी मर्जी का डेटा डालोगे, और फिर what could be use case of that website that you will decide it. So this is called a infrastructure as a service. All infrastructure related stuff is managed by Microsoft. That is called infrastructure as a service, right? All infrastructure related stuff is managed by the Microsoft. That's it's called infrastructure as a service. On the top of that, you are managing this much stuff, right? What do you want to host? You want to host a website, right? तो यहाँ पे आपको कितना इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी वेबसाइट को, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको कौन सा सर्वर लगेगा, हार्डवेयर कौन सा लगेगा, 2 कोर लगेगा कि 16 कोर लगेगा, सॉरी गाइस, 16 कोर लगेगा, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट? कितना स्टोरेज रखने वाला है, आप 1 TB का डेटा स्टोर करने वाले हो क्या 1 पेटाबाइट का डेटा स्टोर करने वाले हो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट उस चीज का ख्याल रख लेगा, राइट? माइक्रोसॉफ्ट बोलो, AWS बोलो या गूगल बोलो, एनीवन हु विल मैनेज दैट, all those which is related to infrastructure. आपको एक वर्चुअल मशीन मिलेगा। On the virtual machine you will have to install the operating system, right? चाहे लिनक्स इंस्टॉल करो या विंडोज इंस्टॉल करो, इसका लाइसेंस आपको देखना होगा, इसका लाइसेंस का आपको ख्याल रखना होगा, इसका पैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको ख्याल रखना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चालू है कि बंद हो गया इसको आपका ख्याल रखना होगा, राइट? उसके ऊपर कौन सा सॉफ्टवेयर डालना है ताकि वेबसाइट रन कर सकूं, उसका ख्याल आपको देखना होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसका लाइसेंस कौन देगा, उसका उसका ख्याल आपको करना होगा, राइट? इट शुड बी रनिंग 24/7, आपका वर्चुअल मशीन और आपका एप्लीकेशन 24 घंटा चले, इसका ख्याल किसको रखना पड़ेगा, आपको रखना होगा, राइट? उसके ऊपर क्या डेटा होना चाहिए और वो क्या किस लिए बनाई गई वेबसाइट, उसका ख्याल आपको रखना होगा। ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू मैनेज, राइट? पार्शियली you manage it, partially Microsoft manage it. In fact, here Microsoft manage only infrastructure related, right? That is called infrastructure as a service. And there is another service which says that platform assist. What do you want to host? You want to host a website. Microsoft says that, hey, you want to host a website. Why are you putting so much efforts, right? Why are you managing operating system? Why are you managing runtime? Why are you managing licenses? Let me handle it, राइट? सब चीज माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा सिवाय आपके डेटा के, उस पर क्या डालना है आपको, वो आप लिखोगे कोड, कौन सा कोड डालना है, कौन सी वेबसाइट डालना है, वो आप लिखोगे, क्या यूज केस होगा वो आप लिखोगे, लेकिन उसके नीचे एक वेबसाइट रन करने के लिए जो जो सारी चीज़ें लगती है, इट शुड बी रनिंग 24/7, सिक्योरिटी पैचेस, राइट? And you need to be have operating system licenses. All those things will be managed by the vendor. Vendor will be AWS, Google और Microsoft Azure, कोई भी हो सकता है पब्लिक क्लाउड वाला, राइट? आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा लेकर आओगे, डेटा के ऊपर आप अपना प्लेटफॉर्म पे डेटा अपलोड करोगे और आपकी वेबसाइट रेडी है। This is called as a platform as a service, right? Now another is called software as a service. हर चीज माइक्रोसॉफ्ट बोलता है मैं मैनेज कर लेता हूँ, आप कोडिंग भी क्यों कर रहे हो, या गूगल बोलता है आप कोडिंग भी क्यों कर रहे हो, आपको करना क्या है, बोले मेरे को मेरा जो प्रोडक्ट है, आई एम वर्किंग फॉर, आई हैव अ कंपनी विच हैव सम प्रोडक्ट्स, लेट्स से दैट मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, फैंस है, ट्यूबलाइट्स है, विच आई वांट टू सेल इट, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ वेबसाइट्स, राइट? माइक्रोसॉफ्ट अश्योर बोलता है ठीक है, आप कोड भी मत करो, आपका कैटलॉग पूरा मुझे दे दो, मैं डायरेक्टली अश्योर पे अपने अपलोड कर देता हूँ, मेरे पास एक रेडीमेड वेबसाइट अवेलेबल है और बहुत लोग उस पर आते रहते हैं। सो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कैटलॉग इज, आप सिर्फ मेरे को कैटलॉग दे दो, मैं हर चीज़ मैनेज कर लूँगा, हर चीज़ मैनेज करूँगा। दिस इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, just like an entire software is ready and you are using it. That's called a software as a service, right? Good example.
आप लोग अभी किससे कनेक्टेड हो? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से कनेक्टेड हो, राइट? दिस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या हमने कोड किया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लिए? नहीं किया। क्या हम उसको हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या हम उसको नेटवर्किंग कनेक्टिविटी दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हम अपनी नेटवर्किंग कनेक्टिविटी बना रहे हैं यूज करने के लिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में जाके टीम्स के लिए कनेक्टिविटी दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्या हम उसका पैचिंग सिक्योरिटी अपडेट्स का ख्याल रखते हैं? नहीं रखते। हम क्या करते हैं? हम जाते हैं सिर्फ एक यूजर बनाते हैं, यूजर को लाइसेंस असाइन करते हैं एंड स्टार्ट यूजिंग दैट Microsoft Teams. So everything is ready. So that is called a software as a service. Right, guys? Any questions in this three? कुछ कंपैरिजन में या फिर अंडरस्टैंडिंग में कुछ कंफ्यूजन है? इमरान, एनी डाउट? मुझे नाम लेकर बुलाना पड़ेगा भाई. You guys are not responding. No, no, sir, no, sir. All right, perfect. No, Ashfaq, sir. No, sir. Ijaz don't have any doubt. Sharif don't have it. No, sir. Okay, Ansar, do you have any doubt? Ansar, are you there, Ansar? Okay. Yasir, are you there? Ashfaq, come on, guys. You can unmute yourself. You can. No, sir. Okay. All right. Yes, sir. Yes, sir. So, doubt है कि नहीं है? Doubt है? Uh, no, sir. No, sir. No doubt. Okay. So, guys, I know that we are connecting from the from the mobile, or might be if it's early morning. People might be sleeping at your home, right? लेकिन हम लोग आंसर देना, छोटे मोटे आंसर तो दे ही सकते हैं. यस, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट यू गाइस आर गेटिंग और नॉट. मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? राइट, अभी मैं आमने सामने तो हूँ नहीं आपके. आपका आवाज़, आपके आंसर ही मुझे बताएंगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नहीं तो मुझे सिर्फ अकेले बात करके जाना है तो मैं रिकॉर्डिंग करके रख लेता हूँ. आप रिकॉर्डिंग देख लो. राइट, इतनी सुबह सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है हमको. सो आस्क द क्वेश्चन गाइस, आस्क द क्वेश्चन. इफ यू हैव डाउट, आस्क मी द क्वेश्चन गाइस. ओके, ऑलराइट, नो डाउट ओवर हियर. सो वी हैव, लेट्स क्विकली एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. पिज्ज़ा एज ए सर्विस. आपको पिज्ज़ा घर पे बनाना है. आपको पिज्ज़ा घर पे बनाना है. आपको उस पिज़्ज़ा का आटा लाना पड़ेगा, आपको चीज़ लाना पड़ेगा, टोमेटो सॉस लाना पड़ेगा, आपको पिज़्ज़ा गूंदना पड़ेगा, आपको ओवन लगेगा, पिज़्ज़ा को मेल्ट करने के लिए, चीज़ मेल्ट करने के लिए आग लगेगी, फायर लगेंगी. यू रिक्वायर इलेक्ट्रिक गैस और माइट बी एवरीथिंग. आफ्टर मेकिंग अ पिज़्ज़ा आफ्टर मेकिंग अ पिज़्ज़ा वो पिज़्ज़ा को आप सोडे के साथ बैठ के आपके डाइनिंग टेबल पे खाते हो, राइट? तो सारा एफर्ट आप लगाते हो घर में पिज्जा बनाने के लिए, राइट? हर छोटी छोटी चीज टॉपिंग से लेके उसके ऊपर टोमेटो सॉस लगाना, राइट? उसको प्रॉपर सेकना, उसको ओवन में रख के कड़क करना, हर छोटी छोटी चीज का ख्याल आप रख रहे हो पिज्जा घर में बनाने के लिए, राइट? हर चीज आप कर रहे हो पिज्जा, गरम गरम पिज्जा बनाने के लिए, ताकि आप अपने टेबल पे बैठ के खा सके, राइट? दैट इज ऑन प्रोमाइसेस. Everything you do that. If I say that infrastructure as a service, IaaS, right? Infrastructure as a service, which means that आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो पिज्ज़ा हट, सॉरी, आप जाते हो डी मार्ट, आप जाते हो हाइपर सिटी. वहाँ पे आधा को हाफ कुक पिज्ज़ा रेडी है, राइट? वो आप उठा कर लेकर आते हो, फ्रिज में रखा हुआ है हाफ कुक पिज्ज़ा, वो फ्रिज में रखा हुआ है.
वो आप अपने ओवन में रखते हो, अपनी फायर पर रखते हो और उसको गर्म करते हो, उसके बाद पिज्ज़ा आपका रेडी है, राइट। सो आधा काम आपने जिनके पास से पिज्ज़ा लेकर आया उन्होंने करके रखा था, पिज्ज़े पे चीज़ टॉपिंग डाल के रखी थी, सॉस लगा के रखा था, पिज्ज़ा का आटा गूंद के रखा, उन्होंने पिज़्ज़ा को थोड़ा सा पका के फ्रिज में रख दिया, राइट। जो फ्रोजन आता है पिज़्ज़ा वो रख दिया। आपने वो फ्रोजन पिज़्ज़ा घर पे लेकर आए, उसको अपने ओवन में और गर्म किया, आपने और कड़क किया, जो पकाना था पकाया। अब उसके बाद अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रहे हो, राइट। सो दिस मॉड्यूल इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। कुछ चीजें ऑलरेडी थी, आपने कुछ चीज की, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ मॉड्यूल। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, आपको पिज्जा खाना है, राइट। तो आपने फोन किया जोमेटो या स्विगी को, जोमेटो स्विगी ने आपको पिज्जा घर पे डिलीवर किया, पिज्जा सब रेडी है, लेकिन आपको अपने टेबल पर बैठ के उसको खाना है अपने सोडे के साथ में, अपना सोडा अपना जूस के साथ में, राइट। सो खाने बाद आपको टेबल भी साफ करना है, प्लेट भी धोना है, कुछ एफर्ट आपको लगाना है, दैट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म एज सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज जस्ट लाइक यू गो ऑन पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, आप आउटलेट पे जाते हो, पिज्ज़ा ऑर्डर करते हो, पिज़्ज़ा आपके डाइनिंग टेबल पे उनकी उनकी ऑफिस में ही, उनकी उनकी दुकान में ही आपको मिल जाता है, पिज़्ज़ा खाते हो, पिज़्ज़े का पैसा पे करते हो और बाहर निकलते हो। आप ना प्लेट साफ करते हो ना टेबल साफ करते हो, कुछ काम नहीं करते हो, आप सिर्फ यूज़ करते हो, पिज़्ज़ा खाते हो और चले जाते हो। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अभी समझ में आई? यहाँ पे कोई डाउट Great, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। Yes, sir. ऑलराइट, नाउ if you want to see in terms of that what are the things covered in infrastructure, so क्या क्या कवर होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में? सारी हार्डवेयर का डेटा सेंटर, पूरी बिल्डिंग हार्डवेयर डेटा सेंटर, फिजिकल सर्वर्स, राइट, फिजिकल प्लेन कूलिंग सिस्टम्स, राइट, फिजिकल केबल्स, सब चीज़ कवर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विस में। उसमें नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, सर्वर, स्टोरेज, all those things are covered as the infrastructure service, right? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अगर हम लोग क्लाउड यूज कर रहे हो, ये सब क्लाउड के मॉड्यूल्स है गाइस, जस्ट सर्विस मॉड्यूल है। सर्विस मॉड्यूल मतलब इस तरह से आपको क्लाउड मिलेगा, राइट। देन अदर इज प्लेटफॉर्म एज सर्विस, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस तो आ ही गया, साथ ही साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, आपका डेवलपमेंट टूल आ गया, आपका डेटाबेस आ गया, उसको एनालाइजिंग टूल आ गया। So that is called a platform as a service, right? That is called platform as a service. प्लेटफॉर्म आपका कंप्लीट रेडी है, चाहे आपको वेबसाइट होस्ट करना हो तो वेबसाइट का प्लेटफॉर्म रेडी है, आपको डेटाबेस होस्ट करना है तो डेटाबेस का प्लेटफॉर्म रेडी है, आपको मशीन लर्निंग करना है तो मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म रेडी है, आपको आइडेंटिटी स्टोरेज रखना है कुछ तो स्टोरेज का प्लेटफॉर्म रेडी है। सो एवरीथिंग प्लेटफॉर्म इज रेडी, दैट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आपका जो चीज चाहते हो उसका प्लेटफॉर्म रेडी, आपको सिर्फ अपना कोड लिखना है या अपना डेटा अपलोड करना है आपके अज्योर की सर्विस या गूगल की सर्विस या एडब्ल्यूएस की सर्विस पे। अभी तक हम लोग सिर्फ अज्योर के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें गूगल में भी है, एडब्ल्यूएस में भी है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, हर सॉफ्टवेयर हमारे पास लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, ऑल सॉफ्टवेयर इज देयर, राइट। यू जस्ट गो एंड यूटिलाइज इट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपका ईमेल सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्विस इज रेडी, you just go start utilizing the email, right? Then you have a calendar, you have Microsoft Teams, you have so many services from the Microsoft or Google, आपके पास रेडी है, आप उसको सिर्फ जाते हो यूटिलाइज करना शुरू करते हो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर सर्विस। ऑलराइट, नाउ you guys tell me, infrastructure service, platform service, if I want to host a स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर मतलब एक वीडियो, मैं एक वीडियो कंपनी हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, शादियों शादियों की रिकॉर्डिंग बनाता हूँ, राइट।
तो मेरे को सारी वीडियोस अपनी अपलोड करना होती है ताकि मेरे कस्टमर को बता सकूं, कस्टमर एक्सेस कर सके. So I required a streaming software, streaming service on my on premises. क्या चीज़ों का ख्याल रखना होगा मुझे? अगर मुझे ऑन प्रोमाइसेस पे ख्याल रखना है तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होगा? कम ऑन गाइस, क्विकली. Sir, लेट मी. application. ओके, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. मुझे नेटवर्क गुड बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि Sure. लोग मेरा डेटा देख सके, राइट? यस, गो अहेड इमरान. Storage, server, everything is on premises. यस, हमको स्टोरेज भी लगेगा, सर्वर भी लगेगा, हार्डवेयर कंप्यूट पावर, हार्डवेयर आईपी और सब चीज़ें, सारी चीज़ें लगेंगी. ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करेगा? हम लोग मैनेज करेंगे. और हमको एक सॉफ्टवेयर लगेगा जिसके ज़रिए हम लोग स्ट्रीम कर सके. हमको सॉफ्टवेयर रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम को पैचिंग करना पड़ेगा, सिक्योरिटी देखना पड़ेगी, राइट? ये सारी चीज़ें. और Right. फाइनली हमारी रिकॉर्डिंग्स आती है. हमारी रिकॉर्डिंग, मूवीज़ की रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्डिंग, शादी की शूटिंग, राइट? किसी का फंक्शन, वो सारी चीज़ें हम लोग अपलोड डेटा अपलोड करते हैं. और उसका यूज़ केस क्या है? स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन इज स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, स्ट्रीमिंग वेबसाइट बना रहे हैं, राइट? सो दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑन प्रोमाइसेस. अब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या क्या फर्क आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या फर्क आ गया गाइस? शरीफ. इसमें हमें सिर्फ एप्लीकेशन डेटा रन टाइम मिडल और ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली. करनी सो पड़ेगी, बाकी सब हमें हम लोग रेडीमेड मिलेगा। इस पे वर्चुअल मशीन बनाएंगे. इसके ऊपर हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो स्ट्रीमिंग वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, राइट? और उसके ऊपर अपना वीडियो रिकॉर्डिंग डालेंगे और उसको यूज करेंगे, राइट? हम लोग हार्डवेयर और स्टोरेज पे फोकस रखें. सब चीज़ अपने लिए रेडी है, आपको जो चीज़ चाहिए वो सब है. प्लेटफॉर्म सर्विस. इसमें सर अपनों को सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा लगेगा. एप्लीकेशन रेडी. एग्जांपल बोलो यहाँ पे कुछ, क्विक क्विक एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल वी हैव हियर. सब चीज़ रेडी है, आपको सिर्फ अब वीडियो रिकॉर्डिंग लगती है आपको. क्विक एग्जांपल. यूट्यूब. कैन यू कंसिडर यूट्यूब? यस सर, यूट्यूब यूट्यूब, यस यस। यूट्यूब में आप सिर्फ अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो. आप क्या बस हाँ हाँ। आप अपने सॉफ्टवेयर पे ध्यान देते हो? नहीं ध्यान देते हो. आप ध्यान देते हो कि यूट्यूब शुड बी रनिंग. वो तो चलता ही रहता है पीछे बैकग्राउंड में, राइट? उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको पैचिंग करने का, सिक्योरिटी का ध्यान रखते हो? नहीं रखते हो. आप सिर्फ अपना डेटा लेकर आते हो, उसको अपलोड करते हो यूट्यूब, राइट? और इसका एग्जांपल बोलो सॉफ्टवेयर सर्विस का, जो सब चीज़ रेडी, आप जस्ट जाके यूटिलाइज करते हो. एग्जांपल बोलो इसका. गूगल। गूगल. कैसे हाँ, गूगल कैसे? यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो थोड़ी है गूगल पे. नेट लगता है सर उसमें. कैन वी कंसिडर Social नेट media, Facebook, LinkedIn. कैन वी कंसिडर द नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम? Yeah, yeah. Yes, sir. Only subscription we are taking, and everything, movie, everything is available online streaming. एग्जैक्टली. Perfect. सो सब मूवी सब कुछ अवेलेबल है. हम लोग सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, राइट? सब यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल. अगर आपका कोई वीडियो है, आपको पब्लिश करना है, तो आप अमेजॉन को ईमेल कर देते हो, हे दिस इज माय वीडियो, आई वांट टू आई वांट टू पब्लिश इट सो पब्लिक कैन सी दैट वीडियो. आप अमेजॉन प्राइम को दे देते हो या अमेजॉन प्राइम आपसे खरीद लेता है, राइट? जो भी बिजनेस मॉडल जो कुछ भी हो. और आपको कुछ करने की जरूरत पड़ी, लोग सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेते हैं और यूज करते हैं. समझ में आया Right, भाई? sir. Right, sir. तो यहाँ पे, यहाँ दोनों में यस। यस सर. यहाँ दोनों में आपको सॉफ्टवेयर का पूरा ख्याल रखना पड़ रहा है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का ख्याल रखना पड़ रहा है, आपको पैचिंग सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ रहा है, आपको ख्याल रखना पड़ा कि ये दिस शुड बी रनिंग 24/7.
वॉशिंग मशीन शट डाउन ना हो जाए, मेरा एप्लीकेशन बंद ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए, सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा है। यहाँ पे कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म रेडी, आप सिर्फ डेटा अपलोड कर देते हो। लेकिन डेटा अपलोड करना आपका काम है, आपको अपलोड करना पड़ा है। कितना अपलोड हुआ, आधा अपलोड हुआ, पूरा अपलोड हुआ, प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है डेटा, डेटा अपलोड हो तो फेल हो गया है क्या, वो सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अपलोडेड है, किसी ने अपलोड करके रखा है, आप सिर्फ डायरेक्टली इसको यूटिलाइज करते हो, राइट। So this is example of those three modules. So in a cloud we have a three serving modules. If you serve infrastructure, you call it infrastructure as a service. If you serve platform, you call it a platform as a service. If you serve software, you call it software as a service, right? So that's it, guys. On yeah, this is important So slide. this is very important. So very this is very important. Most of the interviews they will ask this question only. Yes. So what's the difference between? So they can simply ask that, hey, what's the difference between the different service modules? You have to say that, hey, there's a three service modules in the cloud: infrastructure service, platform service, and cloud as a service, software as a service, right? Then you have to explain that. Just give one example. Give an example of a website, right? Let's say that you want to host a website. So if you on premises, everything you have to manage from the scratch. Everything means everything from the storage account, space, physical space, internet connectivity. And if you are using infrastructure as a model, then you will have a washing machine. You don't need to worry about storage, networking, and compute power. All will be taken care by the cloud provider, right? You just need to create a virtual machine. On the top of that, you will be having your application, which you're going to install it, and you will upload your data, and your website will be ready, right? This way you have to reply it. All right. Now, कोई कंपैरिजन कब कहाँ जाना चाहिए, हर एक के अंदर हमको यूट्यूब पर वीडियो मिल ही जा रहा था, हम हर एक के अंदर वीडियो हमको मिल ही रहा था, तीनों एग्जांपल में हर एक के अंदर हमको वेबसाइट मिल जा रही थी। तो कब कौन सी चीज़ चूज करे, राइट? तो आपको सबसे पहले फायदे देखना है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपका कोई ऑलरेडी आपकी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बना के रखी है, राइट? आपको वो यूज करना है, और आपकी कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारा पैसे लगा के रखी है सॉफ्टवेयर बनाने में, अब वो वापस से सॉफ्टवेयर नहीं बनाना चाहती। तो आप क्या करोगे, आप जिस तरह ऑन प्रेमाइसेस में यूज करते थे, उसी तरह क्लाउड भी उसी तरह क्लाउड पे यूज करना चाहते हो, जिस तरह ऑन प्रेमाइसेस में यूज करते थे, तो आपको जाना है आईएएस मॉड्यूल पे। बिकॉज आईएस मॉड्यूल और और ऑन प्रेमाइसेस मॉड्यूल में ज़्यादा फर्क नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। इट इज़ जस्ट दैट फिजिकल हार्डवेयर आप नहीं मैनेज कर रहे हो, वो क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, राइट? सो you will get complete flexibility rather than running your hardware. You are having running the hardware on Azure provided or cloud or AWS provided, right? And if you don't require that hardware, you just shut down the virtual machine and stop paying for that. That is called that is the advantage of being infrastructure as a service. You have complete flexibility. ज़्यादा कुछ नया कोड में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जिस्टिंग कोड ही यूज़ करते हो, और दैट्स इट, राइट? प्लेटफॉर्म एज सर्विस में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपको हार्डवेयर, आपको सॉफ्टवेयर, आपको प्लेटफॉर्म मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है ठीक है, आपको वेबसाइट अपलोड करना है, आपकी वेबसाइट रेडी है, आपको सिर्फ डेटा लेकर आओ, अपलोड कर दो, सब जो चीज़ चाहिए आपको सब रेडी है। यूट्यूब बोलता है आपको जो चाहिए, कुछ चीज़ का सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरी दुनिया को दिखाना है, दुनिया तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा, आपको सिर्फ आपका वीडियो लेकर आओ, राइट? So that is called a platform as service. So you will increase your productivity. आप कोडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप हार्डवेयर के परचेस करने में ध्यान नहीं दे रहे हो, कौन सा हार्डवेयर चाहिए, क्या चाहिए, आप स्टोरेज पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ आपका जो मेन काम है वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, राइट? आप सिर्फ वो चीज़ पे फोकस करो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करते हो,
राइट, जो आपका स्ट्रीम, आपका फील्ड नहीं है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए था, आपने नेटफ्लिक्स का सॉफ्टवेयर बाय किया और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, so that is software service. So it will go as a pay as a go module, जितना चाहिए आप उतना आप यूटिलाइज करते हो, नहीं चाहिए तो आप बंद कर देते हो, right? This is called pay as a go module. This is called productivity module, right? So this is small comparison between these three modules. All right, guys, any questions do you have in the infrastructure service, platform as service, software as a service? कुछ क्वेश्चन है? No, sir. परफेक्ट एजाज, शरीफ, यासिर, अशफाक, इमरान, अंसार। नो सर। सर सिर्फ इसका अगर क्वेश्चन हुआ व्हाट इज आईएएस, तो सब फ्लेक्सिबिलिटी अगर इतना भी कह दिया तो चल नहीं, जाएगा ना, नहीं, कि पूरी व्हाट इज, डिफिनेशन बोलनी पड़ेगी? पूरी आपको डेफिनेशन बोलना पड़ेगा। ये डेफिनेशन नहीं ओके। है, ये जस्ट कंपैरिजन, डेफिनेशन नहीं है। हाँ हाँ हाँ। डेफिनेशन आपकी ये है, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, जी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इज अ मॉड्यूल वेयर यू आर not paying, not deploying the hardwares, right? You will having that, आप डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी भाई, यस यस यस। right? So let's take a 5 minutes break, guys. We'll go. Okay, no, 1 minute. Hold on. Then we'll go ahead a little bit. Uh, डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल, क्लाउड मॉड्यूल पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे, उसका नया टॉपिक शुरू होगा, राइट? सो ये हमने क्या देखा, हमारे पास एक क्लाउड है। कौन सा क्लाउड है? एक क्लाउड टेक्नोलॉजी मार्केट में आई। अगर कोई 5 एसेंशियल कैरेक्टर्स कोई पूरे करता है, फुलफिल करता है 5 एसेंशियल कैरेक्टर्स, तो अपने आप को क्लाउड मॉड्यूल कहलाएगा भाई, हाँ ये क्लाउड प्रोवाइडर है, राइट? अगर वो 5 एसेंशियल कैरेक्टर्स पूरे चार पांचों 5 एसेंशियल कैरेक्टर्स कवर करता है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्लाउड मॉड्यूल, राइट? बट how there is a 3 types of cloud module, it's get in terms of serving, आप उसको सर्व कैसे करोगे? तो उसको सर्व करने के 3 मेथड है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, 3 सर्विस है, राइट? लेकिन उसको डिप्लॉय करने के भी 3 तरीके हैं। डिप्लॉय करने के 3 तरीके मतलब, राइट? डिप्लॉय करने के 3 तरीके मतलब उसको कैसे आप इंस्टॉल करोगे, ये तो यूज करने के तरीके हो गए गाइस, ये तो यूज करने के तरीके, कैसे इंस्टॉल करोगे, ये तीनों चीजें, राइट? सो पहले आता है पब्लिक क्लाउड, मतलब डेटा सेंटर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी, एवरीथिंग विल बी क्लाउड प्रोवाइडर। सब चीज माइक्रोसॉफ्ट या एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा, कि भाई जगह उनकी रहने वाली है, राइट? हार्डवेयर उनका रहने वाला है, मैं सिर्फ जाऊंगा, अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, वर्चुअल मशीन बनाऊंगा या प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। दैट इज कॉल्ड अ पब्लिक क्लाउड, हर चीज उनकी है, और मैं रिमोटली उसको सिक्योर्ड कनेक्टिविटी से कनेक्ट करूंगा, शायद पब्लिक आईपी हो या पब्लिक प्राइवेट आईपी हो या वीपीएन सर्विस हो, व्हाट कुड बी पॉसिबल, आई एम कनेक्टिंग, दैट इज कॉल्ड पब्लिक क्लाउड। हम लोग सिर्फ इसी को जानते हैं सो फार। देयर इज अनदर मॉड्यूल इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड, राइट? अभी तक जो हम लोग सब जो जहन में हमारे रहता है सिर्फ पब्लिक क्लाउड का रहता है। देयर इज अनदर क्लाउड इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। क्या होता है, कुछ कुछ कंपनी जैसे बैंक हो गई या फिर कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज हो गई, वो बोलते हैं कि भाई हमको ये चीज़ पसंद आई कि भाई वन क्लिक पे चीज़ें डिप्लॉय हो जा रही है, वन क्लिक पे बैकअप हो जा रहा है, वन क्लिक पे स्टोरेज अकाउंट बन जा रहा है, वन क्लिक पे आपका जो क्लाउड सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आया, हमको अश्योर का सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अश्योर के डेटा सेंटर में नहीं जा सकते, हमारे कुछ कंप्लायंस है, कुछ लीगल चैलेंजेस है, जिसके हिसाब से हमको हमारे ही डेटा सेंटर खुद का बनाना पड़ेगा। लेकिन हमको आपका सॉफ्टवेयर मिलेगा क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा ठीक है, आपको मेरा सॉफ्टवेयर देता हूँ, आपको अपना हार्डवेयर खुद मेंटेन करो जो सॉफ्टवेयर के लिए लगने वाला है, राइट? लेकिन मैं आपको सॉफ्टवेयर देता हूँ, सो दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट क्लाउड, राइट? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट आपको सिर्फ क्लाउड का सॉफ्टवेयर दे देगा, पूरा सॉफ्टवेयर, और आपका हार्डवेयर आप कराएगा,
माइक्रोसॉफ्ट डेफिनेटली उसको बिल करता है आपको. सो दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट क्लाउड. So in Azure, we call it Azure Stack. So hardware will might be purchased from you. और Microsoft क्या कर सकता है, दूसरा बोलता है अच्छा ठीक है आपको अपने ऑफिस में रखना है तो मैं मेरा हार्डवेयर उठा के आपके डेटा सेंटर में रखता हूँ, आपके ऑफिस में रखता हूँ. ठीक है, आपको भी हार्डवेयर भी खरीदने की जरूरत नहीं, वो भी रेंट पे ले लो मेरे से. सो दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट क्लाउड. ठीक है भाई. ऑलराइट. Now there is called hybrid cloud. Hybrid cloud is a combination of public and private cloud. कुछ डेटा है जैसे यूजर डेटा हो गया या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, वो अपने ही डेटा सेंटर में रखते हैं. और कुछ जो पब्लिक फेसिंग वेबसाइट हो गई जैसे कि आपका एसबीआई की वेबसाइट हो गई, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वेबसाइट हो गई, जो पब्लिक फेसिंग है वो पब्लिक क्लाउड पे जाती है. इन दोनों को मिला के बनता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड. राइट. व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ बीइंग पब्लिक क्लाउड? आपको कोई कैपेक्स की जरूरत नहीं. कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर. कोई हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं, कोई हार्डवेयर का भाड़ा देने की जरूरत नहीं. आप जाते हो, डिप्लॉय करते हो रिसोर्सेस और उसको जस्ट पे करते हो. प्योर कंजम्पशन बेस है. आपके पास एजिलिटी है. आज आप बोलते हो कि मेरे को एडब्ल्यूएस पे काम करना है, कल आप गूगल पे आ जाते हो, परसों माइक्रोसॉफ्ट अश्योर पे आ जाते हो. राइट. आज आप आईएएस मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, कल प्लेटफॉर्म एज ए मॉड्यूल पे, प्लेटफॉर्म एज सर्विस मॉड्यूल पे आ जाते हो. या फिर वापस आप सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉड्यूल पे आ जाते हो. आपके पास कंप्लीट एजिलिटी है. एजिलिटी मतलब फ्रीडम है यहाँ से वहां मूव करने की. राइट. सो दिस इज एडवांटेज ऑफ बीइंग अ पब्लिक क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड के एडवांटेज क्या है? आपके पास कंट्रोल है, आपको पता है डेटा कहाँ पर है, किधर रखा हुआ है, आपको पता है कि डेटा आपका कोई डेटा को हाथ नहीं लगा सकता. सिक्योरिटी है. So you have complete control on hardware. You have a complete security on hardware, on your data. So that is a being advantage of private cloud. हाइब्रिड क्लाउड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि भाई आधा डेटा यहाँ पे रखो ऑन प्रोमाइसेस में, आधा डेटा पब्लिक क्लाउड में रखो. दैट विल हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी. और आप अपना कंप्लायंस भी फुलफिल कर लेते हो और पैसे भी बचा लेते हो. सो दैट इज अ हाइब्रिड क्लाउड. राइट. सो Azure, AWS, गूगल, ये पब्लिक क्लाउड है. Azure स्टैक, ओपन स्टैक, या फिर रेड ओपन शिफ्ट, रेड हैट का ओपन शिफ्ट, ओरेकल स्टैक, दोज आर द प्राइवेट क्लाउड सॉफ्टवेयर्स. राइट. हाइब्रिड क्लाउड तो दोनों को मिला तो हाइब्रिड क्लाउड बन गया. ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चंस? दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट स्लाइड. No, sir. Right. Those are the cloud provided in the market. Right. Hold on. What is capex? What is opex? capex stand for capital expenditures, opex for operational expenditures. मतलब capex मतलब आप ह्यूज अमाउंट में हार्डवेयर इन्वेस्ट करते हो, ह्यूज अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदते हो, कूलिंग सिस्टम बनाते हो. राइट. दैट इज विल कॉल्ड अ capex. फॉर बिल्डिंग योर डेटा सेंटर आप हार्डवेयर भी खरीद रहे हो, डेटा सेंटर भी बना रहे हो, कूलिंग सिस्टम बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, आप पावर बैकअप्स बना रहे हो. सो दैट इज अ कैपेक्स. राइट. आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करते हो, उसके अंदर क्या होता है कि आप ह्यूज अमाउंट आप फ्रंट पे करते हो, पहले से पे करना पड़ता है. और उसका जो पूरा वैल्यूएशन है, साल 5 साल में 10 साल में वो पूरा पूरा मुनाफा होता है. ज़्यादा वक्त लग जाता है. राइट. ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसका पे करते हो. राइट. जैसे अजूर क्लाउड हो गया, या नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया. आप कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसका सिर्फ जो यूज करो उसका पे कर रहे हो. राइट. तो आपको अपफ्रंट कोई कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वही साल के अंदर आप उसको टैक्स का एडवांटेज ले सकते हो. इट्स कंप्लीटली पे एज अ को मॉड्यूल. दैट इज कॉल्ड ओपेक्स. कैपेक्स, ओपेक्स. राइट. दिस इज द टू टर्म्स जनरली यूज इन अ क्लाउड. ऑलराइट, लेट्स होल्ड ऑन. uh, we'll take a 5 minutes break and come back in 5 minutes or 10 minutes, guys. What do you think?
10 5 minutes, sir. ठीक है 10 minutes का break लेते हैं, then we'll come back in 10 minutes.
Hey guys, can you hear me? Are you back? Yes, sir. Okay. All right. So what we have learned today, we have learned about infrastructure service, platform as service, and software as a service, right? Now, why Azure? So far, what we have seen, जो भी हमने अभी तक देखा, वो कॉमन था AWS के लिए भी, Azure के लिए भी और Google के लिए भी, राइट? तो Azure ही क्यों सीखे? वजह क्या है? तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे कोई वजह नहीं। कोई भी क्लाउड से स्टार्ट करो, आपको करियर उतना ही है। Azure इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट बैकग्राउंड से जनरली आते हैं। We are coming from Windows administrator. We are using Microsoft Windows operating system, right? Windows 10 use करते हैं, Windows 7 use करते हैं. So it is pretty easy to understand for us to assure Microsoft products, right? Microsoft अपने प्रोडक्ट जो बनाता है, हमको समझने में आसानी हो जाती है. So that is only use or only case of having the Azure. क्या मार्केट में सैलरी किसकी है, पैकेज किसका ज़्यादा है? दोनों का इक्वल है. Doesn't matter whether you go for the AWS or Google इंडिया में थोड़ा कम है, but if you go for the Azure or Google or might be AWS, all three are same equal, right? So another thing is that once you start with any career with any cloud, whether it's AWS or Google, you can move further to other cloud services. आपको एक क्लाउड समझ में आ गया तो दूसरे क्लाउड भी धीरे धीरे समझ में आ ही जाते हैं, right? और यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है, तो this is just a marketing speech which says that hey, Microsoft is among the 11 firms selected provided by the Indian government. So Indian government में Microsoft की वैल्यू ज़्यादा है, right? Not the AWS, right? Microsoft by 2022 AWS को के ऊपर चला जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं. This is just a survey, right? Then there is says that hey, Microsoft have a huge business. राइट, माइक्रोसॉफ्ट ने बड़े बड़े ट्रिलियन डॉलर बिलियन डॉलर के डील साइन किए. सो अगर AWS वाला होता तो AWS की कुछ अपनी अपनी स्लाइड्स लेकर आता था और इसी तरह से प्रेजेंट करता था. फ्रैंकली स्पीकिंग, एज अ सेल्स गाय आई कैन पिच ओवर दैट है माइक्रोसॉफ्ट कितने फायदे हैं, AWS कितने फायदे, बट एक्चुअली ऑल आर सेम, ऑल आर सेम. डजंट मैटर वेर यू स्टार्ट फ्रॉम, राइट? AWS से स्टार्ट करो, Azure से स्टार्ट करो, फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ इतना एडवांटेज होता है कि Azure हमारे लिए आसान दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट आसान बनाता है, since we are already coming from the Microsoft background. Alright, so I'll skip those slides. What is Azure? Azure is nothing but a cloud platform provided by Microsoft, right? And it having huge data centers across globe, and it is capable enough to run your workloads. That is Azure, right? Now, what are the services in Azure? So there is so many services in Azure. If you consider that Microsoft Compute, right? In Compute, only the Compute have this much services. And this is a few are listed, not all are listed. If you say that, hey, data related to so many services will be available related to data, right? If you say the network, so many network services are related to there. So we are going to learn almost all services, not every services, but most of services we're going to learn here, right? So first start with architectural component of Azure. Azure के architectural components क्या है, right? First things we call it Azure geographical regions, right? Azure अपने geographical regions को 5 categories में divide करता है: अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका. Right? This is a geographical categorization. It is only the business perspective. They have divided themselves in a different categories. Now they have also divided in terms of categorization in terms of countries also. Country के हिसाब से भी अपने आप को वो अपनी categorization करता है. Just to show that presence हम यहाँ मौजूद है, right? And secondly, that
ये कंट्री के कंप्लायंस, ये रीजन के कंप्लायंस हम फुलफिल करते हैं। तो अश्योर अपने आप को कैटेगराइज में डिवाइड करता है और हर ज्योग्राफी के अंदर एटलीस्ट टू रीजन्स अवेलेबल है। अब रीजन्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्हाट इज रीजन्स? सो ईच ज्योग्राफी टिपिकली कंटेन्स टू और मोर रीजन्स। व्हाट इज रीजन्स? राइट, regions is nothing but a one data center, or region is nothing but a data center. So either it could be possible one big data center, या तो कोई एक बहुत बड़ा बिग डेटा सेंटर हो, या फिर छोटी छोटी बिल्डिंगों को मिला के डेटा सेंटर बनाया गया हो, या फिर एक ही एरिया में एक ही एरिया में अलग अलग लोकेशन पे उसने डेटा सेंटर बनाया। इन सब को रीजन कहते हैं। रीजन मतलब आपका डेटा सेंटर। सो आई गिव जस्ट एग्जांपल। इन इंडिया, हमारे इंडिया में तीन रीजन्स है। सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया। सेंट्रल इंडिया बोले तो पूना, वेस्ट इंडिया बोले तो मुंबई, एंड साउथ इंडिया बोले तो चेन्नई। राइट, सो दिस इज द थ्री रीजन्स अवेलेबल इन इंडिया। राइट, अब यहाँ पे आप अपने वर्कलोड डिप्लॉय कर सकते हो। आपके वर्कलोड, आप बोलते हो कि हाँ मुझे अपना वर्कलोड डिप्लॉय करना है, सो आई एम डिप्लॉइंग इन सेंट्रल इंडिया, सो यू माइट बी डिप्लॉइंग इन मुंबई। आप मुंबई में कहाँ डिप्लॉय कर रहे हो? इट कुड बी पॉसिबल दैट एक बहुत बड़ा माइक्रोसॉफ्ट ने जगह लेकर रखा डेटा सेंटर, उसके अंदर डिप्लॉय कर रहे हो। क्या माइक्रोसॉफ्ट ने प्लानिंग किया कि मुंबई के अंदर जगह बहुत महंगी मिलती है तो हम छोटी छोटी बिल्डिंग ले लेंगे? ये माइक्रोसॉफ्ट की प्लानिंग है। राइट, सो वी डोंट नो, बट व्हेन वी से दैट रीजन, सो रीजन इज सेंट्रल इंडिया विच इज लोकेटेड इन मुंबई। समझ में आई बात? व्हाट इज रीजन गाइस? एवरीवन गाइस, व्हाट इज रीजन? आर यू गॉट इट? रीजन समझ में आया आपको? Yes, sir. परफेक्ट, Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट। ऑलराइट, सर ये अब मतलब लोकेशन सेट करता है मतलब ऐसा है। लोकेशन पकड़ लो। रीजन मतलब लोकेशन। रीजन मतलब लोकेशन, कहाँ आपको अपना वर्कलोड रखना है, कहाँ आपको वॉशिंग मशीन डिप्लॉय करना है। रीजन मतलब लोकेशन। ऑलराइट, अब वो जो लोकेशन पे या तो एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर हो सकता है, या फिर छोटे छोटे डेटा सेंटर को मिला के उन्होंने एक डेटा सेंटर बनाया, या फिर एक ही लोकेशन के अंदर तीन अलग अलग एरियाज के अंदर उन्होंने अपने डेटा सेंटर्स को रखा है। उसकी रीजन है, मैं तीन एरियाज, तीन वर्ड इसलिए बोला हूँ, तीन एरिया इसलिए रीजन बोला हूँ कि आगे हम लोग टर्म देखने वाले हैं विच वी कॉल इट जोन। राइट, तो उसको हम लोग जोन्स बोलते हैं। तो मुंबई के अंदर समझ लो, अगर आप मुंबई मुंबई को जानते हो, तो मुंबई में कोलाबा या विक्टोरिया टर्मिनस वीटी, वो एक एरिया पकड़ लो। राइट, Mira Road will be another area. Nai Mumbai will be another area. So this three will be a different area, but all three will be called as a Mumbai region. Or if you say in Azure terminology, it will call a West India region. All right. So Okay, okay. right. So that is a region, bhai. All right. अब रीजन को कंटिन्यू करते हुए, रीजन के अंदर कुछ स्पेशल, आपके पास सब्सक्रिप्शन आपने खरीदा, आपका सब्सक्रिप्शन लिया माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से, फ्री ट्रायल बनाओ या फिर पेड सब्सक्रिप्शन बनाओ, एनी सब्सक्रिप्शन विच यू हैव परचेज फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। राइट, माइक्रोसॉफ्ट आपको अपने सारे दुनिया के रीजन में अलाउ करता है वर्कलोड डिप्लॉय करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंडिया में बैठे बैठे यूएस के रीजन में भी वर्कलोड डिप्लॉय कर सकता हूँ। इंडिया में बैठे बैठे मैं कतर के डेटा सेंटर के रीजन में डिप्लॉय कर सकता हूँ। आई कैन डिप्लॉय अक्रॉस द ग्लोब एनीवेयर। इट्स अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस रीजन्स अज्योर के है जहां आप अपना वर्कलोड डिप्लॉय कर सकते हो विद द सेम सब्सक्रिप्शन। विद द सेम सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्रिप्शन लिए। अब बिलिंग कैसा होगा? आपको वहाँ के प्राइस के हिसाब से इंडिया में डॉलर, इंडिया में आईएनआर कन्वर्ट करके आपको चार्जेस लगते हैं। आप यूएस में डिप्लॉय करें तो बिलिंग डॉलर्स में होगा, कतर डिप्लॉय कर रहे हो तो दरम दिनार में होगा। उसको कन्वर्ट करके आप आईआरआर में पे करते हो, इंडियन रुपीस में पे करते हो। राइट, सारे, आप दुनिया के सारे रीजन में अपने वर्कलोड डिप्लॉय कर सकते हो एक्सेप्ट फ्यू विच मीन्स दैट कौन से वर्कलोड? एक अश्योर गवर्नमेंट, चाइना, जर्मनी। जर्मनी इज नॉट, नाउ इट्स अलाउड,
Earlier it is also allowed, and Germany have now opened the door. Germany says that okay, it's allowed, right? Mostly China and Azure government data centers. Azure के तीन चार government data center, not only North America, there is a multiple regions across the globe, right? वहाँ पे है, वहाँ पे आप लोग अपने वर्कलोड नहीं डिप्लॉय कर सकते। अगर वहाँ पे डिप्लॉय करना है तो आपको कुछ लीगल्स एंड क्या कहते हैं कंप्लायंस फुलफिल करना पड़ेगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट को बोलना होगा भाई आई नीड टू डिप्लॉय, आई एम वर्किंग फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, so those are the my government projects and those are the legal document, those are the compliances which I am fulfilling, kindly allow that specific regions। so वो specific regions जब ही allow होंगे आपको, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आप वो स्पेशल रीजन्स में डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कुछ रीजन्स छोड़ के, स्पेशल रीजन्स छोड़ के आप दुनिया में कहीं भी अपना वर्कलोड डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। अब एक और टर्म है पेयर रीजन। आपका एक रीजन आपने डिप्लॉय किया सेंट्रल इंडिया में, समझो मैंने पुणे में डिप्लॉय किया सेंट्रल इंडिया में, और पुणे में अर्थक्वेक आ गया, सारा डेटा सेंटर बैठ गया, मेरा वर्कलोड तो गया, सारी लाखों करोड़ों की मेहनत गई, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना डेटा रेप्लिकेट करते हैं एक लोकेशन से, एक रीजन से दूसरे रीजन पे। हमेशा कंटिन्यूस रेप्लिकेशन चलता रहता है, कंटिन्यूशन रेप्लिकेशन चलता रहता है। उसको कहते हैं डीआर सेटअप, डिजास्टर रिकवरी सेटअप, राइट। फॉर एक रीजन से दूसरे रीजन में रेप्लिकेशन होना चाहिए, राइट, और रेप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए, उसके लिए स्पेशल कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेयर रीजन, राइट। अगर आपका सेंट्रल इंडिया में कुछ डिजास्टर होता है तो ऑटोमेटिकली अज्योर की पास सर्विसेज आपको रिसोर्सेज बना के दे देंगे, कहाँ, साउथ इंडिया में। सो दिस फॉर सेंट्रल इंडिया द पेयर रीजन इज साउथ इंडिया। तो आपको जो भी डेटा रेप्लिकेट करना है आप साउथ इंडिया में रेप्लिकेट करके रखोगे, हम लोग देखेंगे पेयर रीजन के बारे में डिटेल में, राइट। सो दिस इज टू ओवरकम विथ फिजिकल आउटेज, natural disaster, network outage, power outage. To overcome those problems, minimize the service impact, we will have a region which is called a pair region. Any questions on the region, guys? Region आपको समझा या नहीं समझा? सर रीजन में सर हर डेटा सेंटर में सर डेटा स्टोर करके रखते हैं, जैसे आप जैसा बोल रहे हर डेटा सेंटर में नहीं, जहां आपको हैं जरूरत घर है, में, जहां आपको जरूरत है। लेट्स से जैसा एग्जांपल में, जैसा हाँ पुणे में आप, आपका लॉस हो गया। हाँ अगर आपका डेटा से पूना में अपने अपना वर्कलोड, अपने अपने कंप्यूटर्स, अपने वेबसाइट्स आपने पूना के डेटा सेंटर में डिप्लॉय किए थे, ठीक है। अब पूना में अर्थक्वेक आ गया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप वो होने से पहले, आपका बिजनेस बहुत क्रिटिकल है, तो आप अपना डेटा रेप्लिकेट करते रहते हो कोई दूसरे रीजन में, डेटा रेप्लिक कॉपी करते रहते हो दूसरे रीजन में। लेट मी गिव एग्जांपल, आपको बहुत आसानी से एग्जांपल देता हूँ। एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी डिटेल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब वो रखता है पूना के डेटा सेंटर में। अब पूना के डेटा सेंटर में अर्थक्वेक आ गया तो सब लाखों करोड़ों का एसबीआई का नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो जो रिकॉर्ड्स कस्टमर है, जिसने कस्टमर ने पैसे रखे थे सबके सब गायब हो जाएंगे, राइट। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, राइट। फिर कस्टमर को प्रूफ लेकर आना पड़ा, देखो मेरा स्टेटमेंट, देखो मेरे पास इतने पैसे थे, क्लेम्स आएंगे, कुड बी एनीथिंग, राइट। सो ये सारी चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करता है, आपका सारा डेटा पूना के डेटा सेंटर में स्टोर हो ही रहा है, लेकिन जैसे ही स्टोर होता है ना, इमीडिएटली एक और कॉपी दूसरे रीजन में बन जाती है, एक और कॉपी, वही सर वही चीज़। हाँ, उससे दूसरी कॉपी रीजन में कॉपी हो जाती है। वो कौन से रीजन में कॉपी होना चाहिए, मैं बोलता हूँ चेन्नई रीजन में होना चाहिए कॉपी। So the pair region for me, for Pune is Chennai. So that is always happening. ये हमेशा 24 घंटा होते रहता है. So that is called a pair region or disaster recovery concept. Right, guys? Any questions here? Okay, perfect. नो सर। नो सर।
Perfect, perfect. All right. So this is all about pair region. We have two regions which is paired each other. East India is one. East US is one region. West US is another region. So we are having special connectivity, special bandwidth, so we can replicate the data. That is called a pair region. Sorry for interrupt. Yes, sir. सर ये इसके लिए पे चार्ज करते हैं वो लोग. Yes, we have to pay. Everything have to be paid. आप अगर स्टैंड हम्म, अलोन सर्विस पे करोगे तो आप एक्स अमाउंट पे करोगे. आप बोलते हो कि मुझे रेप्लिकेटेड सर्विस चाहिए तो शायद आप एक्स प्लस कुछ और अमाउंट पे करोगे. हम्म. ओके ओके Right? ओके. So there will be charges. Everything will be charges. Right? So Imran, for you, just consider that you have a data center in Chennai, physical data center, right? Now, if ओके. your company required a DR drill, generally they do the DR drill to Bangalore, Hyderabad, right? You have to pay the extra amount for Hyderabad data center, right? You have to build up a data center. It is same way. या राइट. All right. Now, those are the regions where you can deploy the resources. So those blue spots, by sitting in India, by sitting in Singapore, by sitting in Dubai, by sitting in the UK, US, by sitting in the jungle, doesn't matter. You have internet connectivity, you have access to Azure portal, you can access those data centers across the globe. सारे data center को आप access कर सकते हो, right? Now, the coming to the point, next slide is called availability set. ठीक है, मैं अपना डेटा तो रख रहा हूँ. मेरी कुछ वेबसाइट है, क्रूशियल वेबसाइट है, क्रिटिकल वेबसाइट है. लेट्स से एग्जांपल, मेरी वेबसाइट है flipkart.com. कहाँ है मेरा पेंट, there is a paint, right? I have website called flipkart.com. The customer is hitting on my server called flipkart.com, right? Customer hitting here. हमेशा वेबसाइट पे आ रहे हैं मेरे, परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहा है. अब ये वेबसाइट के अंदर कुछ मुझे फीचर अपग्रेड करना है, कुछ नया फीचर लाना है, या सर्वर का हार्डवेयर पुराना हो रहा है, हार्ड डिस्क कुछ आवाज कर रही है, मुझे चेंज करना है. मुझे करना क्या होगा, वेबसाइट को डाउन करना पड़ेगा. डाउन टाइम बोलते हैं जिसको हम लोग, वेबसाइट को डाउन करना पड़ेगा. वेबसाइट डाउन होगी बोलते हैं ना. सो दोज थिंग इज दैट वी हैव टू शट डाउन योर वेबसाइट, राइट? जब शट डाउन करता हूँ तो मेरा बिजनेस लॉस होता है. कोई भी मेरे flipkart.com पे पहुंच नहीं पा रहा है. तो सब लोग कहाँ भागेंगे? सब लोग भागेंगे amazon.com पे, राइट? सब लोग अमेजोन पे चले जाएंगे, सब लोग ईबे पे चले जाएंगे, सब लोग मिंत्रा पे चले जाएंगे. तो मेरा कस्टमर मेरे से कट रहा है. और एक बार उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई हाँ, मिंत्रा भी इजी है या फिर अमेजोन भी इजी है, सेम है. सो दे विल गो फॉर अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, राइट? सो एक बार उनको भेजना वहाँ पे, मतलब मेरा बिजनेस लॉस करना है ताकि वो हमेशा जा सके. मेरी कस्टमर लॉयल्टी टूट जाएंगी. सो मैं चाहूंगा कि मेरे बिजनेस 24 घंटा चलते रहे. लेकिन एक सर्वर पे ये नामुमकिन है. आपका एक सर्वर हार्डवेयर कभी फेलियर हो सकता है, आपका कभी मेंटेनेंस करना पड़ता है, आपको सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत पड़ती है, राइट? आप एक सर्वर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो. तो तो द कॉमन प्रैक्टिस वर्ल्ड में क्या चलती है कि आपके जो भी सर्वर रहते हैं, जो क्रिटिकल सर्वर्स है, इनको हम लोग डिप्लॉय करते हैं हाई अवेलेबिलिटी में. क्या बोलते हैं उसको? हाई अवेलेबिलिटी. 2 या 3 से ज्यादा सर्वर्स पे डिप्लॉय किया जाता है उसको. और तीनों में दोनों तीनों में सेम डेटा होता है, सेम डेटा होता है, राइट? अब बात आती है कि भाई मैं इसको इधर भेजूं, रिक्वेस्ट को इधर भेजूं, इधर भेजूं, किधर भेजूं. तो वो सारा डिसीजन कौन लेता है? मेरा लोड बैलेंसर लेता है. एक एक सर्विस आती है जिसका नाम है लोड बैलेंसर, राइट? सारा वो वर्कलोड flipkart.com का लोड बैलेंसर पे आता है. लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कौन फ्री है, उसको मैं काम देता हूँ काम करने के लिए, राइट? सो दिस विल बी बैक एंड पूल फॉर माई लोड बैलेंसर, और दिस विल बी फ्लिपकार्ट विल बी फ्रंट एंड. तो सारी चीजें क्या हो रही है, सारी चीजें आ रही है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट की हिट बैकएंड पे, लोड बैलेंसर पे आती है. लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कौन फ्री है जिसको काम दे सकता हूँ, और कौन अवेलेबल है उसको काम दे सकता हूँ. तो
ये लोड बैलेंसर डिसाइड करता है। अब मेरे को मेंटेनेंस करना है, वेबसाइट में चेंजेस करना है, हार्डवेयर चेंजेस करना है, तो ये वेबसाइट डाउन कर दिया मैंने, इट्स ओके। अदर दो तो है कम से कम मेरा काम पूरा करने के लिए। so, दो मेरी वेबसाइट तो चलती रही, हाँ थोड़ी स्लो हो जाएंगी लेकिन चलती रहेंगी, राइट। सो मेरा बिजनेस लॉस नहीं होगा, थोड़ा स्लोनेस आएंगी लेकिन बिजनेस लॉस नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी, HA, हाई अवेलेबिलिटी, राइट, HA। अब ये वर्चुअल मशीन को मुझे अज्योर में डिप्लॉय करना है, तीनों को। तीन मैंने भी अज्योर पे आया, बोला कि भाई अज्योर पे जा रहा हूँ मैं, अज्योर पे VM1 बनाया मैंने, VM2 बनाया, VM3 बनाया, राइट, VM3 बनाया। इत्तेफाक से जो सारी वर्चुअल मशीन है एक ही बेयर मेटल पे आ गई। बेयर मेटल याद है आप लोग को गाइस? Yes, sir. यस इमरान, ओके। अदर वन, डू यू रिमेम्बर द बेयर मेटल? सर बता दो एक बार। हार्डवेयर भाई, होस्ट, राइट। सो जो हार्डवेयर में जिस पे सर्वर इंस्टॉल करते हैं, जिस पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं हम, हाइपरवाइजर टाइप 1, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेयर मेटल। याद आया अभी? सर्वर, बड़े बड़े हाँ सर्वर, सर याद है। बड़े बड़े सर्वर जिसको हम लोग हार्डवेयर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेयर मेटल, राइट। और अगर जिस पे हार्डवेयर है उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टाइप 2 हाइपरवाइजर, दैट इज ए होस्ट। दिस इज ऑल्सो होस्ट बट दिस इज कॉल्ड बेयर मेटल। सो एक ही बेयर मेटल पे, एक ही हार्डवेयर पे तीनों वॉशिंग मशीन आ गई, और ये हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई तो माइक्रोसॉफ्ट ने हार्डवेयर बंद किया, हार्ड डिस्क चेंज करने, तीनों मशीन मेरी बंद पड़ गई। तो मेरा हाई अवेलेबिलिटी डिप्लॉय करने का फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो मैं बोलूँ माइक्रोसॉफ्ट को, बोलूँ भाई मैंने 3 वॉशिंग मशीन डिप्लॉय किया था ताकि मेरी वॉशिंग मशीन, मेरा वर्कलोड हाई अवेलेबिलिटी में रहे, तूने हार्डवेयर ही बंद करके तीनों ही बंद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट बोला भाई मेरे को थोड़ी पता था कि तेरे तीनों मशीन इसी पे चल रही है, राइट। तो चलो एक मेथड डिसाइड करते हैं, एक मैकेनिज्म डिसाइड करते हैं। हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी सेट, राइट। अवेलेबिलिटी सेट में क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट को आप बताओगे कि ये मेरे तीनों एक ही हाई अवेलेबिलिटी के ऑप्शन वर्चुअल मशीन है, ये तीनों जो मशीन आने वाली है या चारों मशीन आने वाली है, ये तीनों एक ही काम करने वाले हैं, और इन लोग मैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो इनको अलग अलग रख। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा आपका, राइट, माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा आपका हाई अवेलेबिलिटी के लिए उसके अलग अलग हार्डवेयर मेटल है, अलग अलग ग्रुप्स में बनाएगा। 3 ग्रुप्स बनाता है माइक्रोसॉफ्ट, राइट। पहला मशीन आपका यहाँ डिप्लॉय करेगा, दूसरा मशीन यहाँ डिप्लॉय करेगा, तीसरा मशीन यहाँ डिप्लॉय करेगा, और ये सारे के सारे तीनों लोड बैलेंसर के पीछे रहेंगे, राइट, तीनों के तीनों लोड बैलेंसर के पीछे। दिस विल बी ऑल माई हिट्स कम्स फ्रॉम हियर टू लोड बैलेंसर, एंड लोड बैलेंसर विल डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड। अब माइक्रोसॉफ्ट बोलता है एक हार्डवेयर बंद कर रहा हूँ, और कर दिया अपनी मर्जी से उसने, कम से कम दो तो चलते रहेंगे मेरे, मेरा वर्कलोड चलता तो रहेगा, right? That mechanism is called availability set. To achieve high availability, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि भाई अपने वर्कलोड को, आपने उसको बताया कि मेरे हाई अवेलेबिलिटी का वर्कलोड है, और इसमें दो भी जो वॉशिंग मशीन आने वाले हैं वो तीनों मेरे एक ही टाइप के रहने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है ठीक है, अब मैं तीनों का अलग अलग रखता हूँ, कभी कुछ हार्डवेयर का प्रॉब्लम आया तो मैं ध्यान रखूंगा। तो खाली 3 बेयर मेटल की बात नहीं होती, माइक्रोसॉफ्ट पूरी लाइन, इंटायर लाइन, माइक्रोसॉफ्ट व्हाट इट डू दैट इट विल इंटायर थ्री, माइक्रोसॉफ्ट के पास 3 मशीन्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के पास 3,000 मशीन है, 3,000 फिजिकल सर्वर है इन वन डेटा सेंटर, राइट। सो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता, 1,000 डेटा सेंटर का एक सेट बनाता है, दूसरे 1,000 डेटा सेंटर का एक सेट बनाता है, तीसरे 1,000 डेटा सेंटर का एक सेट बनाता है, राइट। और तीनों को अलग पावर सप्लाई देता है,
नॉट नेसेसरी फिजिकल सर्वर का प्रॉब्लम आया, अगर इसका केबल पावर सप्लाई खत्म हो गया तो, कट गया तो पावर सप्लाई, इसका इंटरनेट का पावर सप्लाई कट गया तो, इंटरनेट का वायर कट गया तो, right? So all those things physical, all those things which is related to physical, Microsoft is categorized in three categories, right? This is called फॉल्ट डोमेन। ठीक है, ऑब्जेक्ट डोमेन फॉल्ट डोमेन हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन समझ लो कि किस लिए फॉल्ट डोमेन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अपने डेटा सेंटर को तीन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पूरा डेटा सेंटर तीन ग्रुप में अलग डिवाइड कर दिया। एक के अंदर रिलायंस का पावर सप्लाई ले लिया, एक के अंदर टाटा का पावर सप्लाई ले लिया, एक के अंदर स्टेट बोर्ड का पावर सप्लाई ले लिया, एमईसीबी का पावर सप्लाई ले लिया, राइट। ओके, अब टाटा का पावर गया तो कम से कम उसके पास दूसरे सर्वर जो चल रहे रिलायंस के और स्टेट बोर्ड के, वो तो रहेंगे। सेम वे इंटरनेट के लिए एक सीफी की लाइन ले लिया, एक रिलायंस की लाइन ले लिया, एक एक टाटा कम्युनिकेशन की लाइन ले लिया, राइट। सो माइक्रोसॉफ्ट इज ट्राइंग टू मेक रिडंडेंट हिट सर्विस, सो कुछ ना कुछ उसकी सर्वर चलते रहे। आप जब वॉशिंग मशीन डिप्लॉय करोगे flipkart.com या आपका बैंकिंग का वेब सर्वर्स, राइट, those servers Microsoft will make sure that it should be deployed distributed तीनों अलग अलग सर्विस अलग अलग कैटेगरीज में, राइट। दैट इज कॉल्ड availability set. Keep application online during the maintenance of hardware failure, right? During the maintenance or hardware failure, आपकी application should be चलती रहना चाहिए, application should be online. That is done through the availability set, right? उसके दो टर्म्स हैं, अपडेट डोमेन, फॉल्ट डोमेन, दोनों अलग अलग काम के लिए होते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। फिर एक तरीका ये है, अगर मेरे पास एक बड़ा डेटा सेंटर है, ये एक बड़ा सा डेटा सेंटर था मेरा, बड़ा सा वन बिग डेटा सेंटर, दिस इज ओनली वन बिल्डिंग हैविंग बिग डेटा सेंटर, तो मुझे ऐसे अलग अलग कैटेगरी करना पड़ी, राइट, तीन तीन ग्रुप बनाना पड़ा। अगर मैं तीनों कैटेगरी को अलग एक ही सिटी के अंदर, एक ही सिटी है मेरा, मैं क्या करता हूँ, तीनों को अलग अलग लोकेशन, थ्री अलग अलग बिल्डिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। भाई यहाँ पे ग्रुप वन है, ये ग्रुप टू है, ये ग्रुप थ्री है, राइट। आपका एक मशीन यहाँ ये बिल्डिंग में बनेगा, ये मशीन ये बिल्डिंग में बनेगी, ये मशीन ये बिल्डिंग में बनेगी। ये बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, इन तीनों के बीच में डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर का है, राइट। ये बिल्डिंग मेरी कोलाबा में है, ये बिल्डिंग मेरी, कम ऑन, आई नीड टू बाय न्यू कीबोर्ड, कोलाबा में है, ये बिल्डिंग मेरी मीरा रोड में है, right? ये बिल्डिंग मेरी न्यू बॉम्बे में है, right? ये बिल्डिंग न्यू बॉम्बे में, राइट। तीनों अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जगह पे मेरे पावर सप्लाई आने वाला है, डेफिनेटली इसका पावर सप्लाई अलग आने वाला है, डेफिनेटली इसका पावर सप्लाई अलग आने वाला है, डेफिनेटली इसका पावर सप्लाई अलग आने वाला है। इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग रहने वाली, इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग रहने वाली, इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग रहने वाली। एंड व्हेन आई डिप्लॉइंग माय वेबसाइट flipkart.com, एक यहाँ डिप्लॉय किया, एक यहाँ डिप्लॉय किया, एक यहाँ डिप्लॉय किया। अब तीनों का प्रॉब्लम एक साथ थोड़ी आ सकता है, बहुत कम चांसेस है, राइट। तीनों को मेंटेनेंस लेने का एक साथ मेंटेनेंस नहीं लूंगा मैं, एक टाइम पे एक ही मेंटेनेंस लूंगा, दो तो अलग चलते रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी जोन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? Availability zone. Within a same region, I have distributed my workload between the three different boundaries, isolated boundaries. This is called availability zone. Right? Availability set क्या था? सेम बिल्डिंग में मैं आइसोलेशन किया था, सेम बिल्डिंग में, और ये अलग अलग बिल्डिंग्स अलग अलग लोकेशन पे रखा हूं मैंने, बट ऑल थ्री आर सेम रीजन, ऑल थ्री इन विद इन सेम रीजन। समझ में आया? अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट, यस गाइस। सर। Yes, sir. अंसार म्यूट पर रही हो कब से?
ऑलराइट, नो इशू। सो दिस इज कोई एग्जांपल। अगर सिंगल मशीन है मेरा, सिंगल मशीन है, तो चांसेस है कि भाई उसका एसएलए कम मिले। 99.9 एसएलए है मेरा, राइट। अगर मेरा अवेलेबिलिटी सेट में डालता हूं मैं, अवेलेबिलिटी सेट, सेम डेटा सेंटर, सेम बिल्डिंग है, वन बिग डेटा सेंटर, राइट। उसके अंदर तीन अलग ग्रुप्स बनाया, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, तीन ग्रुप्स बनाया। उसके अंदर मुझे एसएलए मिलता है 99.95। अवेलेबिलिटी जोन में जाता हूँ तो एक सेम रीजन है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री। तो यहाँ पे एसएलए मिलता है मुझे 99.9, राइट। और उसके अलावा मेरे पास अगर पूरा डेटा सेंटर पूरा मुंबई बैठ गया, तो मैं जाऊंगा पूना, मेरा वर्कलोड लेके उसके रेप्लिकेट करता रहूंगा। So that is for overcome that high availability we have called pair region. Sorry guys. So what is SLA? SLA क्या होता है इमरान? Service level agreement. सर्विस लेवल एग्रीमेंट। Service level agreement. So what exactly mean of service level agreement? तो आपका और कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि भाई ये चीज़ मुझे मिलना चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं पेनल्टी लगाऊंगा तुमको, या फिर पैसे नहीं देने वाला हूँ। That is called service level agreement. So in the service level agreement, when we say that 99.9, how much time they can take downtime? So there is a website called uptime.is. This is a website. You can calculate easily service level agreement. जब मैं जब बोलता हूँ कि 99.9, सो अगर मेरा एग्रीमेंट होता है महीने का, कि भाई महीने में तू डाउन टाइम, वो बोल सामने वाला बोले भाई डाउन टाइम तो लेना पड़ेगा, कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आती है हर चीज़ के अंदर। बोला ठीक है, कितना एसएलए देने वाला है? बोलता 99.9 एसएलए देता हूँ। विच मीन्स दैट महीने में 43 मिनट्स वो अपने मशीन्स को बंद रख सकता है, हमारे मशीन को बंद रख सकता है, मेरे वेबसाइट को बंद रख सकता है, और मैं उसको कंप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। बोला भाई सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ही है, हम लोग बाहर नहीं गए। 10 मिनट हो गया भाई, मेरी वेबसाइट बंद है, हाँ मालूम है बंद है, पहले से प्लान मेंटेनेंस एक्टिविटी आपको ईमेल आया था। बोले भाई मेरा काम इंपॉर्टेंट है, नहीं सर वी कैन नॉट डू दैट, यू शुड यू रीशेड्यूल योर वर्क। बोले भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, बोले नहीं सर दिस इज आवर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, हमने 43 मिनट्स का एसएलए 99.9 एसएलए डिसाइड किया था मंथली बेसिस पे। सो मैक्सिमम यू कैन हैव द 43 मिनट्स डाउन टाइम फॉर द अ मंथ। इफ यू गो फॉर 99.95 which get reduced to 21 minutes, 21 मिनट्स हो जाता है अगर 99.95। तो आपका सिंगल मशीन आपने क्या देखा था कि 43 मिनट्स तक आप माइक्रोसॉफ्ट को चिल्ला नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो भाई मेरा वॉशिंग मशीन बंद हो गया, राइट। 99.95 है। अगर आप अवेलेबिलिटी सेट पे जाते हो तो 21 मिनट्स तक आप माइक्रोसॉफ्ट को कुछ बोल नहीं सकते हो, राइट। और इफ यू गो फॉर 99.9 which is get reduced to 4 minutes, huge difference, 99.9 is 43 minutes, or for 93.9999 will make you 4 minutes monthly, right? So that is how we calculate service level agreement, right? Sometimes people say that hey, we are giving a guarantee 3,999. So 999 means 99.9. Some will say that hey, we are giving a guarantee of 4 times 9. So this is 99.9. And some say that we are giving guarantee of 5 nines, which is हम सिर्फ 26 सेकेंड तक डाउन टाइम ले सकते हैं, विच इज नो बडी गिव्स दैट, एग्जैक्टली नो बडी गिव्स दिस वन, राइट। पूरे साल में 5 मिनट का डाउन टाइम इम्पॉसिबल है, नो बडी कैन गिव दैट वन। जनरली पीपल गिव 4 nines, 3 nines, 4 nines, right? So this is generally we talk about in service level agreement. All right.
Now there's one more service in Azure which we call it scale set. We'll see that virtual machine skill set when we are going to covering topic compute topic. So where there we are going to cover that, hey, what is skill set, right? So आपका एक मशीन आइडेंटिकल मशीन खुद वो खुद बनाते जाता है, खुद की कॉपी बनाते जाता है, आइडेंटिकल बनाते जाता है। जैसा वर्कलोड बढ़ेगा वैसे मशीन्स अपने काउंट बढ़ाते जाएगा। So that is also option for high availability, right? So that is a skill set option. So far we have seen the three high availability options: availability set, availability zone और availability scale set, right? ये डिजास्टर में आता है, हाई अवेलेबिलिटी में नहीं। हाई अवेलेबिलिटी का पार्ट है per region, but it comes in disaster. This is something different story, right? Any questions so far, guys? ये टर्मिनोलॉजी आपको समझने की जरूरत है। Any questions? No, sir. Okay, No. perfect. Now this is terminology. This is no few things we are talking in Azure. Hey, what is high availability? What is availability zone? What is regions? Generally, very frequently we are talking in Azure. Now, apart from that, what we are talking in Azure is called some terminologies. Terminology मतलब क्या क्या किसको क्या बोलते हैं। So in Azure हर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स। आपका वर्चुअल मशीन एक रिसोर्स है, आपकी हार्ड डिस्क एक रिसोर्स है, आपका नेटवर्क कार्ड एक रिसोर्स है, आपकी पब्लिक आईपी एक रिसोर्स है, आपका वर्चुअल नेटवर्क एक रिसोर्स है। हर छोटी छोटी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स, राइट? सो एक वर्चुअल मशीन जब बनाते हो तो बहुत सारे रिसोर्स बनते हैं। वर्चुअल मशीन जब बना रहे हो तो आपके पास वर्चुअल मशीन बनेगा, आपके पास डिस्क बनेगी, आपके पास नेटवर्क कार्ड बनेगा, आपके पास पब्लिक आईपी बनेगी, आपके पास वर्चुअल नेटवर्क बनेगा, आपके पास एनएसजी बनेगा, आपके पास फायरवॉल रहेगा, आपके पास यूडीआर रहेगा। सो मेनी थिंग्स यू विल बी देयर, सो एवरीथिंग इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ठीक है? क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन? No, sir. राइट, एनी सर्विस इन Azure is called a resource. Now अब मेरे पास हर चीज रिसोर्स बनाते जा रही है श्योर, सब चीज बना रही है, और मैंने 100 वर्चुअल मशीन डिप्लॉय किया, तो हर एक के 100 डिस्क आएंगी, हार्ड डिस्क आएंगी, राइट? 100 डिस्क आने बाद हर एक का नेटवर्क कार्ड भी आएगा, 100 नेटवर्क कार्ड आएगा। अब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए, पहचानने के लिए, भाई कौन सा नेटवर्क कार्ड किसके लिए है, कौन सी डिस्क हार्ड डिस्क किसके लिए। हाँ, फोल्डर्स वोल्डर्स कुछ मैकेनिज्म आ जाए तो हम लोग समझेंगे। तो दैट मैकेनिज्म, फोल्डर्स, things keeping a proper place is called resource group, right? हमारे सारे एक तरह की चीजें हम लोग एक साथ जमा करके रखेंगे, उसको बोलेंगे ग्रुप। एंड सारे रिसोर्स को हम लोग एक साथ जमा करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रिसोर्स ग्रुप, right? So let's say that I am deploying 100 virtual machine. Out of that 100 virtual machine I have 50 HR machine, 50 HR की मशीन है और 50 फाइनेंस टीम की मशीन है, राइट? तो मैं दो रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा, एक HR रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा और एक फाइनेंस का रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा, और सारी HR की मशीन्स HR के रिसोर्स ग्रुप में रखूंगा और सारी फाइनेंस की मशीन्स फाइनेंस के रिसोर्स ग्रुप में रखूंगा, राइट? इट इज जस्ट लाइक अ फोल्डर। आप जो फाइल्स फोल्डर्स बनाते हो ना, इट्स लाइक जस्ट लाइक अ फोल्डर। फोल्डर की साइज होती है क्या? नहीं होती है। फोल्डर का कॉस्ट लगता है क्या? नहीं लगता है। तो सेम वे रिसोर्स ग्रुप का कॉस्ट लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। सेम वे रिसोर्स ग्रुप की साइजेस होती है, रिसोर्स ग्रुप का कुछ फंक्शन होता है? नहीं होता है, सिवाय के आपका वर्चुअल रिसोर्सेज को संभाल कर रखे, राइट? सो अगर मैं फोल्डर को डिलीट मारूं तो अंदर की सारी फाइल डिलीट हो जाती है, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, फोल्डर को डिलीट मारूं अंदर की सारी फाइल डिलीट। सेम वे अगर मैं रिसोर्स Yes. ग्रुप को डिलीट मारूंगा तो अंदर के सारे रिसोर्सेज डिलीट हो जाते हैं, राइट? सो क्विकली सी दैट व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स ग्रुप। हम लोग अश्योर पोर्टल पे जाते हैं अभी। Sir, today class. सॉरी, Hello, sir. यस Sir, यस। today class 8:30 to 10:30 or level? No, we'll wind up. Just let me cover this topic. We'll wind up. What do you prefer, guide? Okay.
We'll continue tomorrow, sir, please. Yeah. Just showing that practically. Okay. No theory. All right. So this is my Azure portal. This is Azure portal. Right. Now let me go here. If I click on all resources, सारे resources देखना चाहता हूँ. आपको दिख रहे इतने सारे resources दिख रहे हैं मेरे पास अलग अलग टाइप के अलग अलग चीज़ों के. Right. So those are my resources. All inventory. So those are my resources. Right. 55 आइटम मैंने डिप्लॉय किया है. अब इसके अंदर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कौन सा रिसोर्स किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं कौन सी टीम के लिए है. तो उसको मेंटेन करने के लिए मेरे पास है रिसोर्स ग्रुप. रिसोर्स ग्रुप इज नथिंग बट अस एम्प्टी फोल्डर. तो अभी जैसे मेरे इसमें समित R&D करके एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. राइट. तो इसके अंदर मेरे सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो आइटम मैं डिप्लॉय करूंगा इसके अंदर करूंगा. कुछ चीज़ डेमोस्ट्रेट करना है तो इसको डिलीट नहीं करना चाहूँगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब तक रिसर्च मेरी कंप्लीट नहीं होती मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहूँगा. तो सारी चीज़ें मैं यहीं पे मेंटेन करके रखूँगा. राइट. अब डेमोस्ट्रेट है. अब डेमो करने बाद मैं उसको डिलीट कर दूंगा. आई डोंट रिक्वायर्ड इट. डेमोस्ट्रेशन इज डन सो आई डोंट रिक्वायर्ड इट. सो आई कैन डिलीट दिस रिसोर्स ग्रुप. मैं जब रिसोर्स ग्रुप को डिलीट मारता हूँ तो सारे अंदर के रिसोर्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे. राइट. मुझे एक एक करके डिलीट मारने की जरूरत नहीं है. राइट. ऑल्सो आई कैन फाइंड आउट अच्छा इसका बिल कितना हुआ. ये HR को कितना बिल बोलूँ मैं कितना कितना यूज कर रहे हैं लोग HR वाले. तो आई कैन फाइंड आउट और एट कॉस्ट एनालिसिस मैं इनका बजट सेट कर सकता हूँ. मैं इनको लॉक लगा सकता हूँ कि और कोई रिसोर्सेज को डिलीट ना कर सके सिवाय मेरे. राइट. मैं इसके अंदर क्या क्या डिप्लॉय हुआ देख सकता हूँ. सारे डिप्लॉयमेंट देख सकता हूँ. बहुत कुछ है रिसोर्स ग्रुप में. विल सी वन बाय वन. So resource group is nothing but a virtual boundary. It's just like a folder to keeping your all similar kind of resources, right? So that is your resource group. So I have multiple resources. Let's say that मेरे पास बहुत सारे resources है अलग अलग टीम के अलग अलग डिपार्टमेंट के. तो मैं रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ. राइट. और सेम डिपार्टमेंट के आइटम एक साथ में रखता हूँ. सेम डिपार्टमेंट के आइटम एक साथ में रखूंगा. राइट. सो दोज आर द कॉल्ड अ रिसोर्स ग्रुप. राइट. अच्छा. जस्ट टू क्लेरिफाई दैट हम रिसोर्स ग्रुप बाद में नहीं बनाते हैं. हम कभी भी कोई चीज़ डिप्लॉय करते हैं अज्योर के अंदर वर्चुअल मशीन बना रहे हैं हार्ड डिस्क बना रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ डिप्लॉय कर रहे हैं हम लोग. राइट. जो कुछ भी डिप्लॉय कर रहे हैं दैट वी विल पुट इट रिसोर्स ग्रुप फर्स्ट. तो हम लोग करते हैं उल्टा करते हैं. हम लोग पहले रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं फिर उसके बाद रिसोर्स बना के उसके अंदर रखते हैं. तो रिसोर्स ग्रुप आपको कंपलसरी है आपको बनाना पहले. अच्छा. सवाल ये आएगा कि भाई क्या मैं हमेशा नया रिसोर्स ग्रुप बनाऊं. नहीं. अभी ये सर्कल मैंने बनाया था HR के लिए. अब मुझे HR ने बोला ट्रायंगल बना. किसकी रिक्वेस्ट है HR की. तो मैं सेम रिसोर्स ग्रुप यूज करके यहीं रख दूंगा. राइट. आई डोंट रिक्वायर टू बी क्रिएटेड अगेन न्यू. विल सी लेटर ऑन गाइस. राइट. So we'll take a halt here today. We'll talk about resource manager, declarative sentence providers. We'll talk later on. So far we talk about the resource and resource group. Right? Any questions, guys? If you have questions, otherwise I'll just stop recording. No, sir. No questions? All good? All good, guys? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. All right. Take care, guys. Have a nice day. So see you tomorrow. कल कब मिल रहे हैं हम लोग? Same time, तो 8:30. 7 बजे रखते हैं सर. सब बोलो भाई. एक कोई एक की सजेशन किसी अलग अलग प्रेफरेंस क्या कहना है आपका गाइस. 7 बजे सर चले. कल का भी रोजा रहा तो टाइम चेंज करते. कल रोजा रहने वाला है. रोजा तो रहने वाला है. रहेगा ना हो. कल रोजा है. सर
साढ़े आठ का ही टाइम रखो सर, ये कल पहला बज रहा है। हाँ, नींद में रहोगे, रात को सोओगे नहीं, ठीक है। चलो कल के लिए हम लोग हाँ कल को 8:30 बजे अटेंड करते हैं। और नेक्स्ट सैटरडे हाँ संडे का हम लोग प्लान करते हैं कि कब रखना है। ठीक है, कल प्लान करते हैं, कल का एक नॉर्मल टाइम ये रखते हैं 8:30 का। नेक्स्ट सैटरडे संडे का हम लोग देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलो टेक केयर Okay, sir. गाइस। Thank you. हैव अ Okay. नाइस डे।